अब शवासन में हम अवेयरनेस को कैसे रोटेट करना है वो समझने की कोशिश करेंगे। तो बिगिनर्स को ये दिक्कत होती है कि वो शुरुआत में आसन को महसूस नहीं कर पाते हैं, वो इमेजिनेशन करना शुरू कर देते हैं। तो हमें इसको अनुभव लेना है, एक्सपीरियंस करना है। इमेजिनेशन शुरू में होता है, लेकिन जैसे जैसे आप आसन करते जाएंगे, एक ही आसन आप हर रोज सालों तक करते रहेंगे, तो वो अनुभव आपको आना शुरू हो जाता है। तो अब हम इस अवेयरनेस को शरीर में कैसे रोटेट करना है वो समझने की कोशिश करेंगे। अब सबसे पहले मसल्स, तो आपको सारे मसल्स रिलैक्स छोड़ने हैं। तो हम शुरुआत करेंगे राइट साइड से, राइट लेग से, राइट टो से। तो इमेजिन नहीं करना है, कोई भी मूवमेंट नहीं करनी है, आपका कॉन्शियसनेस सिर्फ उस तरफ लेके जाना है। तो क्या आपको राइट फुट में कहीं पे टाइटनेस नजर आ रहा है, किसी उंगली में टेंशन नजर आ रहा है, क्रैम्प नजर आ रहा है, तो उसको धीरे धीरे रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। फिर धीरे धीरे आपके हिल की तरफ जाइए, एंकल की तरफ जाइए। क्या वहां पे आपको कोई स्पाज्म नजर आ रहा है, उसको रिलैक्स कीजिए। फिर धीरे धीरे शिन बोन की तरफ आइए, काफ मसल, ओवर द नी, साइड ऑफ द नी, बैक ऑफ द नी। फिर धीरे धीरे इनर थाइज, आउटर थाइज, यानी कि ग्रॉइन मसल, हैमस्ट्रिंग मसल एंड क्वाड्रासेप मसल। फिर धीरे धीरे राइट बटक की तरफ। अब उनको रिलैक्स छोड़ने की कोशिश करते जाइए और महसूस कीजिए कि जैसे जैसे आप इन ऑर्गन्स को, इन मसल्स को रिलैक्स करते हैं, क्या आपका ब्रीदिंग और सटल और धीमा और बेहतर बनता जाता है। अब सिमिलरली हम ये राइट हैंड से रिपीट करेंगे। सो फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने छोटे बच्चों को कभी देखा है तो पहले 6 महीने उनकी जो मुट्ठी होती है वो बंद होती है। तो नेचुरली हमारे शरीर में कुछ कॉन्ट्रैक्शंस है, तो हम कितना भी रिलीज करेंगे तो हमारा एक फिंगर्स का बेंट है वो उतना रहने ही वाला है। तो फिंगर्स को रिलैक्स छोड़ने की कोशिश कीजिए। स्ट्रेट कर रहे हैं अगर आप, तो आप टेंशन बढ़ा रहे हैं। स्लाइटली बेंट है आपके फिंगर्स, तो आप फिंगर्स को रिलैक्स रख रहे हैं। फिर धीरे धीरे रिस्ट की तरफ आइए, फोर आर्म, एल्बो, फ्रंट ऑफ द एल्बो, बैक ऑफ द एल्बो, then towards the bicep, tricep, towards the shoulder, and then towards the collar, right side of the neck, and towards the right ear. Keep relaxing yourself. Now again, take this rotation of the awareness towards the left side. Observe your left toe, big toe, fingers of your left foot, then slightly middle of the foot. Observe your heel. Take the awareness towards the ankle, towards the shin bone. Experience what's happening with your calf muscle. Experience your knee, front of the knee, side of the knee, back of the knee. Then take that consciousness towards the inner thigh muscle, quadricep muscle, that is the outer side of the thigh muscle, hamstring, that is the back side of your thigh muscle. Then take your awareness towards the left buttock. Now experience what's happening with your left hand. Keep relaxing all your muscle.
fingers of your left hand, wrist, forearm, elbow, front of the elbow, back of the elbow, sides of the elbow, bicep, tricep. Then take the rotation of awareness towards the shoulder. Relax your shoulder, relax your left shoulder, relax your left collar muscles, relax your left side of the neck, and take the awareness towards the left ear. Keep relaxing your all muscles. Now take the awareness towards the complete right leg. Observe your complete right leg. Observe your complete right hand. Now observe the complete right side, right from the buttock towards the shoulder, towards the ear, from the back side. Observe your right side from the front side. Keep relaxing yourself. Now rotate your awareness towards the left side. Observe your left leg, right from the toe till the buttock. Observe your left hand. Keep relaxing your breath. Now slowly take your awareness to the lower body, both legs together. Now awareness towards your extremities, both hands together. Now get awareness of your upper body, the trunk. And now observe your whole body together. Now this is the rotation of awareness we need to understand while performing the asana. So be in this position for a while, rest yourself, relax yourself. So cultural asana somehow exert you उतना ज़्यादा नहीं जितना फिजिकल एक्सरसाइजेस में होता है, लेकिन कुछ प्रतिशत तक आपका मस्कुलर एक्सर्शन होता है जो आपको रिलैक्सिंग आसन से आपको मेडिटेटिव आसन के प्रैक्टिस के लिए परिपूर्ण होता है। तो कल्चरल आसन के बाद जब आप रिलैक्सिंग आसन करते हैं, आइदर शवासन और मकरासन, तो आप खुद को रेडी करते हैं मेडिटेटिव आसन के लिए। तो इसलिए हमें रिलैक्सिंग आसन को भी उतना महत्व देना जरूरी होता है। अब धीरे से करवट बदलते हुए आसन से बाहर आना है। और किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाना है। Keep your breathing relaxed and comfortable.